Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, I welcome you all in our today's lecture number 6 of science, that is grade 9 chapter 1, matter in our surrounding. Okay, in our last lecture we have done about the change in state of matter by means of temperature and pressure. Today's topic is evaporation. Today's topic is evaporation and factors on which it depends. So starting with this word evaporation. So what is evaporation? Evaporation होता क्या है? So evaporation is a process of converting liquid matter into a gaseous form or gaseous matter. ठीक है? Below its boiling temperature. Below its boiling temperature is known as evaporation. ठीक है? A process of converting an liquid into a gas at temperature below its boiling point is known as evaporation. Again, और एक बार बोल रहा हूँ, the process of converting liquid into a gas at temperature below than its boiling point is known as evaporation. यानी evaporation is a process जिसमें liquid matter change to gaseous matter. But at what temperature? That temperature has to be below its boiling point. ठीक है? Boiling point देखो, boiling point पे तो liquid gas बनने ही वाला है. So now I am not talking about the boiling point. I am talking about the temperature below the boiling point. So when any liquid turns to gas then below its boiling point, then process is known as evaporation. Okay? पता चल गया? Okay. Now let's see the factors on which it's depend. Okay, the first factor is surface area, because obvious when we talk about a liquid matter तो naturally उसने कोई ना कोई surface तो cover किया ही होगा. Okay, so bigger the surface, highest is the rate of evaporation. Bigger the surface, highest is the rate of evaporation. आपका surface area जितना बड़ा होगा आपका rate of evaporation उतना ही high होगा. ठीक है? For example, अगर हम if we take one plate, okay, of different size, आपके घर में बहुत different size की plate होगी, just measure their surface area. You came to know कि जितना surface area ज़्यादा होगा उतना वहाँ liquid ज़्यादा accumulate होगा. ठीक है? So naturally जहाँ surface area ज़्यादा होगा तो ज़्यादा water molecules होंगे, ज़्यादा water particles होंगे. So जितने water particles ज़्यादा होंगे उनका evaporation rate automatically increase हो जाता है. So you have to keep in your mind कि whenever the given surface area is bigger, your rate of evaporation is going to be faster. Okay, higher the surface area, greater is the rate of evaporation. Now next is temperature. Next is temperature. Okay, so देखो जब हम बात करते हैं लिक्विड को गैस बनाने की, कैसे करते हैं हम? We keep our pressure constant and we keep on increasing our temperature. That means increasing the temperature slowly and steadily. By keeping your pressure constant, you can convert any liquid into a gas. So that is the temperature. Okay, means when we increase the temperature, we get the possibility of converting the liquid into a gas. Okay, so that is the second factor
that when you increase the temperature of a system, your liquid system is going to get changed into a gaseous state more easily. ओके, टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओगे आप लिक्विड को उतना ही ज्यादा गैस में कन्वर्ट कर सकते हो. सो इट्स अबाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. Okay, then third is humidity. So before understanding this concept, let me define the word humidity first. So what is humidity? What is humidity? You have came across this word many of times. ठीक है, आपने जब when you are watching the TV, any news channel, you see in between the ads you see some weather forecast, है ना, उसमें ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सब लिखा आता है, तो वहां की ह्यूमिडिटी वर्ड भी होता है. सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट वर्ड? व्हाट एक्चुअली इट्स डेफिनेशन इज? सो ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वाटर एज अ वेपर प्रेजेंट इन एयर. व्हाट आई सेड, humidity is the amount of water as a vapor present in a air. आपका जो water है ना, water देखो जब हम water word use करते हैं, so by default we talking about the liquid state of water. ये आपको याद होना चाहिए. When we use a word water, so that water word generally means liquid state of water. Okay, so when that liquid water is present as a gaseous water, that is steam, moisture, you can say moisture is the proper word. Moisture is the proper word. So moisture जो होता है air के अंदर, that is the amount of water vapor in gaseous form, and that is nothing but your humidity. उसे ही humidity कहा जाता है. So whatever the amount of water in a gaseous form present in a air is known as humidity. Okay, or you can say the amount of moisture present in a air is known as humidity. Okay, clear? Now next is wind speed. ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आपकी मम्मी कपड़े वॉश करके ऊपर टेरेस पे उन्हें ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए डाल देती, तो आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा विंड होती है, बहुत एरी डे होता है, जब बहुत सारी विंड फ्लो कर रही होती है, उस दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. व्हाई? बिकॉज द ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ मेथड प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. आपके कपड़े जो सूखते हैं ना, दे आर वेट. ठीक है, सूखने के बाद ड्राई हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं? So whatever the amount of water was there within the cloth is being evaporated by the wind, by temperature, whatever the reason is. Okay, so it's nothing but the example of evaporation process. Drying of cloth after their washing is nothing but the example of evaporation. In that we have this thing that is wind speed. So greater the wind speed, जितनी ज़्यादा wind की speed होगी, faster your clothes are going to get dried. जितनी ज़्यादा fast wind होगी, उतने जल्दी आपके कपड़े सूख जाते हैं. आपने observe किया होगा. ठीक है? So what is evaporation? Evaporation is a process of converting liquid into a gas at temperature below its boiling point. Okay, on what factors does it depend? So it depends on these four factors. First factor is surface area. First factor is surface area. Greater the surface area, higher is the rate of evaporation. आपका surface area जितना ज़्यादा होगा, आपका rate of evaporation उतना fast होगा. Okay, then next is temperature. ठीक है, if you increase the temperature, your rate of evaporation will also increase. जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी. थर्ड इज ह्यूमिडिटी. अब इसमें उल्टा है. ठीक है, लोअर द ह्यूमिडिटी, हायर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. हायर द ह्यूमिडिटी, लोअर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी जितनी
कम होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना फास्ट हो जाएगा। अगर आपके एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द टू सीजन, चलो एक तरफ आप समर सीजन ले लो और एक तरफ आप मॉनसून सीजन ले लो। So what is the difference as far as humidity is concerned? In summer season humidity level is very low because हमारी समर सीजन में जो एयर होती है वो ड्राई होती है। कैसी होती है? ड्राई। सो ड्राई का मतलब व्हाट कि उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो बहुत कम है। सो इफ मॉइस्चर इज लो योर ह्यूमिडिटी लेवल इज आल्सो गोइंग टू बी लो। दैट्स व्हाई इन समर योर क्लोथ्स जो आप टेरेस पे सूखने के लिए डालते हो जल्दी सूख जाते हैं। बट एट द सेम टाइम इफ यू टॉक अबाउट द मॉनसून सीजन, अभी की बात कर रहे हैं जैसे मॉनसून सीजन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, आपने देखा होगा कपड़े जल्दी सूखते नहीं है। व्हाई योर क्लोथ्स आर नॉट गेटिंग ड्राइड easily and fastly? The reason is now the moisture level, the humidity level in your air is high compared to the summer season. समर सीजन के कंपैरिजन में मॉनसून सीजन में जो एयर होती है उसके अंदर जो ह्यूमिडिटी लेवल होता है, द पार्टिकल्स ऑफ जो वाटर होते हैं ना गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, वो इतने ज्यादा होते हैं कि ह्यूमिडिटी लेवल ऊपर आ जाता है और दैट ह्यूमिडिटी लेवल दैट क्रिएट डिस्टर्बेंस और क्रिएट अ ऑब्स्टिकल इन द ड्राइंग प्रोसेस ऑफ योर क्लोथ। इससे वो कपड़ों को जल्दी सूखने देता नहीं है। इट टेक too much of time to get dried. Okay, clear? So आपको याद क्या रखना है? If your humidity is low, your rate of evaporation will be high. If your humidity is high, your rate of evaporation will be low. Then last is wind speed. Higher the wind speed, higher is the rate of evaporation. है ना? जितनी wind speed ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चन ऑफ दैट। ठीक है, नाउ जस्ट टेक आउट द पेज नंबर 9 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, पेज नंबर 9 जो है आपके टेक्स्ट बुक में उसमें लास्ट में, ठीक है, नीचे लास्ट में एक टॉपिक दिया है, How does evaporation cause cooling? क्या लिखा है? How does evaporation cause cooling? यानी when the process of evaporation is going on, why we feel the cooling sensation surrounding us? है ना? Whenever the process of evaporation is going on, why we feel that cooling sensation? हमें ऐसा ठंडी महसूस क्यों होती है, ठंडक महसूस क्यों होती है? ठीक है, why we feel that coolness around us, surrounding us? The reason is very simple. क्या होता है कि rate of evaporation means what? Conversion of liquid into a gas. ठीक है, लेकिन that conversion depends on the amount of energy taken within the system and the surrounding. देखो for example ये कोई system है, ठीक है, दिस इज द सिस्टम। ठीक है, ऑब्वियसली अब इसके चारों तरफ जो भी होगा दैट इज सराउंडिंग। ठीक है, दिस इज योर सराउंडिंग। ठीक है, अब आपको सपोज करना है, एज्यूम करना है कि ये जो आपका सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है, अब इवेपोरेशन प्रोसेस से क्या होगा? व्हाटएवर द सरफेस ऑफ दिस सिस्टम इज देयर, तो नेचुरली सरफेस के ऊपर बहुत सारे सरफेस मॉलिक्यूल होंगे इस सिस्टम के। नाउ व्हाट दे डू, दे टेक द एनर्जी फ्रॉम दिस सराउंडिंग। ठीक है, ये सराउंडिंग से क्या करना शुरू करेंगे? दे टेक द एनर्जी। ठीक है, दे टेक द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड विद बिकॉज़ देखो लिक्विड गैस कब बनता है? हमने लास्ट की कुछ लेक्चर्स में पढ़ा है कि लिक्विड को गैस बनाने के लिए पहले तो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच की जो बॉन्ड है उसे हमें तोड़ना पड़ेगा। जब तक ये बॉन्ड टूटेगी नहीं, लिक्विड अलग नहीं होंगे। सो लिक्विड पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए उनके बीच की बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। सो तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? जब हम लिक्विड टू गैस में जाते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, व्हेन वी गो फ्रॉम
लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर टू अ गैस, वहां कौन सी लैटेंट हीट इन्वॉल्व होती है? सो दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या कहा जाता है उसे? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। Okay, so that means your liquid particles will only get converted into a gaseous state if and only if they get the energy equal to latent heat of vaporization. If they get the energy equal to latent heat of vaporization, then and only then that liquid particles will become gaseous और will change into gaseous form। ठीक है, जब तक उनको सराउंडिंग से उतनी एनर्जी नहीं मिलती कि वो एनर्जी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में कन्वर्ट हो सके, तब तक आपका लिक्विड पार्टिकल गैस नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सो सिस्टम क्या करता है? सराउंडिंग तो कितना बड़ा है, सो इजी स्लोली एंड स्टेडीली वो सराउंडिंग से एनर्जी गेन करता है। And as soon as that energy become equal to latent heat of vaporization, what happen? Whatever the liquid particle is there, it get converted into a gaseous form, and that is nothing but your evaporation process. Okay, so evaporation process इतना easily नहीं होता, why actually ये word भी involved है, latent heat of vaporization। सो आपका जो भी सिस्टम है, जो भी लिक्विड सिस्टम है, इनिशियली इट टेक्स द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, देन दैट एनर्जी व्हेन बिकम इक्वल टू latent heat of vaporization, then your evaporation actually start, and when your evaporation process start, whatever the liquid system was there, whatever the liquid particles of system was there, they get converted into a gaseous state one by one। ओके, पता चल गया। और जैसे ये होता है, सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज, बिकॉज जैसे सिस्टम के पार्टिकल्स जो पहले थे, ड्यू टू इवेपोरेशन पार्टिकल्स तो गैस फॉर्म में चले गए, एटमॉस्फेयर में चले गए, सो दैट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो यहाँ थे, ठीक है, वो तो कम हो गए, एंड व्हाटएवर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाज देयर, दे leave the system along with their energy। ये सिस्टम जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, यानी मैं इनकी बात कर रहा हूँ, they are liquid particles, ठीक है, liquid particles leave the system, ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स सिस्टम को छोड़ के चले गए, बाहर निकल गए, लेकिन लिक्विड पार्टिकल अकेले थोड़ी जा रहे हैं, वो अपने साथ अपनी एनर्जी भी तो लेके जा रहे हैं। पता चल गया? so, जब वो अपनी एनर्जी लेके वहां से बाहर निकलते हैं, that result in decrease of energy, that means system का overall temperature decrease हो जाता है, and due to that we feel that cooling sensation, we had that cool feeling around us। so that is the reason when evaporation process take place, initially liquid particles take the energy from the surrounding to carry out the evaporation process, and as soon as that evaporation process gets started, the overall energy of the system, overall energy of the liquid system gets down, ठीक है, lowers, ठीक है, और due to lower in the energy, the overall temperature of the system is also get lowered, and as soon as that take place, we feel that coolness around the surrounding। okay, got the topic? तो क्यों हमें ठंडा लगता है जब भी इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, तो क्यों हमें ठंडा लगता है? ड्यू टू दिस ओनली, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे हम गांव में कहीं, मतलब जरूरी नहीं कि विलेज की बात होनी चाहिए, सपोज एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, सपोज एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, अब उस पेड़ का अगर मैं बाहर खड़ा रहूंगा, ठीक है, इफ वी स्टैंड आउटसाइड दैट ट्री, तो मुझे ना जो ड्यूरिंग समर सीजन क्या होगा, व्हाट एवर दी विंड जो मेरे बॉडी को टच कर रही है, दैट गिव मी वार्म फीलिंग, वो मुझे वार्मनेस देती है, ठीक है, गर्मी लगती है मुझे, लेकिन जैसे मैं पेड़ के नीचे चला जाता हूँ शेड में,
और मेरे ऊपर ट्री है, उसके प्लांट्स है सारे बड़े बड़े, ठीक है, उसकी ब्रांचेस है. सो व्हाट हैपन नाउ, इफ एनी विंड केम एंड टच माय बॉडी, ठीक है, आई फील कूलनेस, तब मुझे ठंडा लगता है. क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग समर, ठीक है, जो आपके प्लांट्स होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं, वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस करते हैं. कौन सा प्रोसेस करते हैं? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस. ट्रांसपीरेशन प्रोसेस यानी आपके जो लीफ है ना, लीफ हैज स्टोमेटा. अब ये थोड़ा बायोलॉजिकल टॉपिक हो गया. आपके जो पत्ते होते हैं ना प्लांट के, ट्रीज के, उन पत्तों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, जिनके अंदर स्टोमेटा नाम का एक ऑर्गेनल पड़ा होता है. स्टोमेटा क्या करता है कि लीफ के अंदर जो भी वाटर होता है, उस वाटर को ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग हॉट समर डे, क्या होता है कि उस स्टोमेटा में से, उस स्टोमेटा की पोर्स में से वाटर मॉलिक्यूल्स धीरे एक एक करके लिक्विड से गैस बन के बाहर आते हैं. एंड दैट प्रोसेस इन प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन. एंड दैट ट्रांसपीरेशन इज नथिंग बट योर इवेपोरेशन प्रोसेस. बस जब हम केमिस्ट्री में उसको पढ़ते हैं तो उसको इवेपोरेशन बोला जाता है, लेकिन जब वो बायोलॉजिकली में आता है, यानी प्लांट्स में आता है, तो उसी इवेपोरेशन प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें व्हाटएवर द वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर इन लीफ, all those water molecules by means of stomata undergo the transpiration process, due to which they get converted into a gaseous water. और जब ये gaseous water vapor प्लांट के चारों तरफ फैल जाते हैं, तो सोचो आप बहुत इजीली सोचो कि अब प्लांट के चारों तरफ, चारों सराउंडिंग में क्या है? वाटर वेपर्स है. क्या है? वाटर वेपर्स. दैट मींस अब कोई विंड, हॉट विंड बाहर से आपकी तरफ आ रही है, तो वो आपके पास आने से पहले उसे किसके साथ कांटेक्ट करना है? वाटर वेपर के साथ. सो जैसे ही वो हॉट विंड वाटर वेपर के कांटेक्ट में आती है, वाटर क्या करेगा? अपनी कूलनेस उसे दे देगा ना. तो जैसे वो वाटर वेपर और एयर आपस में मिक्स होते हैं, दैट एयर गेट कूलर, यानी जो हॉट एयर होती है वो कूल हो जाती है. एंड देन आफ्टर इट कम्स एंड रीच मी, उसके बाद वो एयर मेरे पास आती है. व्हेन इट टच माय बॉडी आई फील द कूलनेस. लेकिन जब मैं बाहर चला जाऊं ट्री के, सो ऑब्वियसली ट्री और वाटर वेपर का जो लेयर है वो तो यहाँ है, मैं तो उसके बाहर खड़ा हूं, तो ऑब्वियसली अब जो हॉट विंड आएगी वो डायरेक्टली मुझे टच करेगी, वाटर वेपर को नहीं, इसलिए मुझे गर्मी लगती है. लेकिन जब मैं प्लांट के अंदर चला जाता हूं, सो नेचुरली विंड को मेरे पास पहुंचने से पहले जो सराउंडिंग में ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की वजह से, ड्यू टू दिस ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स चारों तरफ फैल चुके हैं उनके कांटेक्ट में आना है, एंड दैट क्रिएट द कूलनेस इन दैट विंड. ओके, गॉट द टॉपिक? ओके, चलो नेक्स्ट. नाउ टर्न योर पेज. ठीक है, उसमें और एक क्वेश्चन दिया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? क्या लिखा है? व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. ठीक है, समर्स में हमें कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? ठीक है, हम गर्मी के सीजन में, समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स क्यों यूज करते हैं? बिकॉज दैट कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं, व्हाटएवर द कॉटन क्लोथ्स आर देयर, दे हैव गुड वाटर एब्सॉर्बिंग प्रॉपर्टी. कॉटन क्लोथ्स के पास वाटर को एब्सॉर्ब करने की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है. तो उसमें क्या होता है कि समर, जब हम समर की बात करते हैं, आपको पता है हम बहुत स्वेट करते हैं, पसीना निकलता है, पसीना में स्वेट. ठीक है, बहुत स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी में. सो क्या होता है कि वो जो भी स्वेटिंग है, इट्स नथिंग बट अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. व्हाटएवर स्वेट कम्स आउट फ्रॉम योर बॉडी, स्किन सरफेस, it's a liquid state of matter. So what happen when we wear any cotton clothes? Those cotton clothes particle get absorb the liquid part of that sweat. ठीक है, sweat को absorb कर लेते हैं,
और जैसे एब्जॉर्ब करते हैं तो वो स्वेट जो पहले मेरे बॉडी सरफेस पे था अब मेरे कपड़ों के ऊपर आ जाएगा। दैट मींस उसकी सरफेस चेंज हो गई, पहले वो अंदर था, मेरी स्किन के ऊपर था, ठीक है, इट वाज ऑन माय स्किन। लेकिन जैसे ही मेरे इस कॉटन क्लॉथ ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो यहाँ आ गया, स्किन सरफेस की बजाय अब वो कहाँ, कौन सी सरफेस पे आ गया, क्लॉथ की सरफेस पे आ गया। अब क्या होता है कि नाउ दिस क्लॉथ सरफेस इज exposed to what, atmosphere। पता चला लॉजिक क्या है, पता चला मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले जो स्वेट था वो आपके स्किन पे था, कॉटन क्लॉथ्स ने ऐसा क्या किया, कॉटन क्लॉथ्स ने एब्सॉर्ब किया आपके स्वेट को, अब वो उसको अपने क्लॉथ के सरफेस पे लेके आ गए। नाउ दिस क्लॉथ सरफेस इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाट हैपन, नाउ दैट एटमॉस्फेयर के साथ वो इवेपोरेशन करेगा, क्या करेगा, इवेपोरेशन, यानी इट विल टेक एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड ड्यू टू दैट एक्सेस एनर्जी इट विल रीच टू latent heat of vaporization, and as soon as that heat is reached, whatever the liquid which was absorbed from the cloth it gets vaporized, ठीक है, इवेपोराइज हो जाएगा, जिससे आपकी सरफेस, आपकी क्लॉथ की सरफेस में कूलनेस आ जाएगा और वो कूलनेस फिर आपकी स्किन को ट्रांसफर कर दिया जाता है ना, पता चलता है। बिकॉज आपने देखा जितना स्वेट होता है, तो आपने कॉटन क्लॉथ पहने हो और एकदम से एक विंड आ जाए तो आपको बहुत ठंडा ठंडा लगता है अंदर। So that is the reason, that's why we prefer to wear cotton clothes in summer season, because that helps us to evaporate the sweat, whatever the sweat comes out from our body, it helps us to dry it faster due to evaporation process, and that give the coolness to our body। Okay, then next last question of this chapter, that is now this one, क्या लिखा है उन्होंने, see, why do we see water droplets on the surface of a glass containing ice cold water, है ना, want to say it again, क्या लिखा है, why do we see water droplets, okay, water droplets the outer part of a glass containing ice cold water, ठीक है, पढ़ा आपने, so I am talking about this question, ठीक है, is it clear कि जो कोई भी ग्लास हो, वाटर ग्लास, जिसके अंदर कोल्ड, आइसी कोल्ड वाटर आपने फिल करके रखा है, सो आपने देखा होगा कि उस वाटर ग्लास के बाहर की तरफ बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, है ना, आपने घर में देखा होगा, जैसे आपके सपोज आपने नॉर्मल ग्लास किचन से ले लिया और तुरंत फ्रिज में से एक ठंडी सी बॉटल, चिल्ड कोल्ड वाटर की बॉटल निकाल के जैसे उस पानी को आप उस ग्लास में ट्रांसफर करते हो, तो ग्लास के आउटर सरफेस पे यू कैन सी बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं विद इन नो टाइम। सो ये क्या हुआ, उससे क्या होता है कि व्हेन वी ऐड द कोल्ड वाटर इन द ग्लास, सो उसकी जो आउटर सरफेस होती है वो सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करती है, एंड ड्यू टू दैट गेन ऑफ एनर्जी कौन से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एंड ड्यू टू दैट इवेपोरेशन प्रोसेस जो भी हॉट एयर थी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम दो सिस्टम की बात करें तो देखो आपका जो ग्लास है ना, जिसके अंदर आपने कोल्ड वाटर रखा है, इट्स अ सिस्टम ना, क्या है, इट्स अ सिस्टम, water containing cold water containing glass is a system, और उसकी चारों तरफ जो भी है वो सराउंडिंग है। सो क्या हुआ कि सराउंडिंग में जो एयर थी उसका टेम्परेचर कंपेयर टू योर कोल्ड वाटर ग्लास हाई है, यानी आपके हाथ में जो ठंडे पानी का ग्लास है उसका टेम्परेचर बहुत कम है, जबकि आपके चारों तरफ जो एयर है सराउंडिंग में उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। That means when that hot air, comparatively that hot air, when come in contact with that water glass, क्या होगा, evaporation होता है, नहीं, उल्टा हो जाता है, फिर कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, क्या हो जाता है, कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट,
कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाता है, कंडेंसेशन, एंड ड्यू टू दैट कंडेंसेशन हॉट एयर जो होती है, ठीक है, वो लिक्विड वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती है। व्हाटएवर दी हॉट एयर जो है ना, उसके अंदर जो भी वाटर वेपर होता है वो उसी समय गैसियस फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड वाटर में। दैट्स व्हाई वी सी दैट वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड द ग्लास। पता चल गया? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। नाउ वी लेफ्ट विद सम एक्सरसाइज, उसे हम कंप्लीट कर देते हैं। दिस इज द लास्ट factual exercise which is there on page number 10. Let's see that question number 1, ठीक है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, why does a desert cooler cools better on a hot dry day? अब देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन इवेपोरेशन प्रोसेस पे बेस्ड ही है। वो क्या पूछ रहा है कि जो डेजर्ट कूलर होता है वो क्यों हॉट समर डे पे बहुत ज्यादा जल्दी बेटर कूलिंग करता है। सो अगेन इट्स नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, बिकॉज़ जब हम हॉट सनी डे की बात करें, जैसे उससे वर्ड यूज किया ना हॉट ड्राई डे, जब हम हॉट ड्राई डे की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो कम होगा, है ना। जब आपकी एयर जो है, ठीक है, समर में जब हॉट डे होता है, so during that hot day whatever the air is there, in that air the level of humidity is very low, और जब ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम होता है, हमने क्या बोला, इवेपोरेशन प्रोसेस फास्ट होता है। So if your humidity level is low, that means your evaporation rate is very high. So higher the evaporation rate, higher is the cooling. बिकॉज जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतने ज्यादा लिक्विड वाटर गैसियस वाटर में कन्वर्ट होंगे, और जितने ज्यादा गैसियस वाटर सराउंडिंग में आएंगे, हॉट एयर जैसे उनके कांटेक्ट में आएगी उतनी ज्यादा कूलनेस क्रिएट होगी। दैट मींस व्हाट, कि ऑन हॉट डे ड्यू टू लोअर ह्यूमिडिटी लेवल, rate of evaporation is very high which result in better cooling. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, how does the water kept in an earthen pot becomes cool during the summer? अब देखो ये इससे रिलेटेड है। जैसे मैंने कहा था ना, जो लीफ होता है, प्लांट का जो लीफ होता है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिसमें स्टोमेटा नाम का ऑर्गेनल होता है जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से कूलिंग क्रिएट करता है प्लांट के चारों तरफ। द सेम थिंग, द सेम पैटर्न इज अप्लाइड टू दैट अर्थन पोट, यानी जो मिट्टी का जो मटका होता है, ठीक है, उसके अंदर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी लिक्विड वाटर आपने उस पॉट के अंदर, अर्थन पॉट के अंदर रखा है, दैट वाटर फ्रॉम दैट पोर्स कम्स आउट। उस पोर, बिकॉज़ हमने देखा होगा कि अर्थन पोट के नीचे हमेशा कोई ना कोई पानी तो एक्युमुलेट किया ही होता है, पानी पड़ा ही होता है। तो पानी आपने डाला नहीं, दैट वाटर कम्स आउट फ्रॉम इनसाइड दैट पॉट टू द आउटसाइड फ्रॉम दैट पोर्स। उस पोर्स में से वो बाहर आता है, और जैसे वो वाटर बाहर आता है, इट कम्स इन कांटेक्ट विद द हॉट एयर, और जैसे हॉट एयर के कांटेक्ट में आता है, कौन सा प्रोसेस शुरू होने वाला है, इवेपोरेशन, एंड ड्यू टू दैट कूलिंग इफेक्ट इज क्रिएटेड। इसलिए वो पानी जो मटके के अंदर रखा होता है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब थर्ड क्वेश्चन की बात करें। सो दैट इज, व्हाई डज आवर पाम फील cold when we put some acetone or petrol or perfume on it, ठीक है। अब वो बात कर रहा है पेट्रोल की, वो बात कर रहा है परफ्यूम की, and it's talking about the acetone. Now see, both three compounds are organic. ये तीनों के तीनों कंपाउंड ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की खासियत क्या होती है, they are highly volatile. They are highly volatile compound, यानी हम बात कर रहे हैं पेट्रोल
एसीटोन एंड परफ्यूम। ठीक है, इन तीनों कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं एंड ऑल दिस कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाईली वॉलेटाइल। ठीक है, कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, दे आर हाईली वॉलेटाइल। Now what that one volatile means, यानी ये जो वर्ड लिखा है ना volatile, उसका मतलब क्या होता है? volatile का मतलब होता है जिसमें लिक्विड चीजें रूम टेम्परेचर पे गैस बन जाए। ठीक है, all those chemical compound which turn their state from liquid to a gas at room temperature are known as volatile। यानी वो केमिकल कंपाउंड जो रूम टेम्परेचर पे ही अपने आप विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एनर्जी अपने आप टर्न्स फ्रॉम लिक्विड टू अ गैस, अपने आप लिक्विड से गैस बन जाए रूम टेम्परेचर पे, ऐसे कंपाउंड को वोलेटाइल कहा जाता है। तो देखो गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में सबसे बेस्ट दैट नेल पॉलिश रिमूवर है ना, तो दैट इज नथिंग बट एसीटोन। उसे एसीटोन बोलते हैं केमिकली। ठीक है, व्हाट डू यू कॉल दैट? एसीटोन। तो एसीटोन क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, आपने देखा होगा कि जब आप एसीटोन से आपके नेल पॉलिश को रिमूव करते हो तो यू फील दैट कूलनेस। आप अपने हाथ पे, फिंगर्स पे कूलनेस फील करते हो। उस से आप अपने पाम पे एसीटोन डालो या पेट्रोल डालो, ठीक है, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? इवेपोरेट हुआ ना। सो ड्यू टू दैट इवेपोरेशन कूलिंग होती है। यानी क्या होता है कि व्हेन वी पुट एनी एसीटोन एंड एनी परफ्यूम और एनी पेट्रोल ऑन आवर palm, what happens? Evaporation take place. Means whatever the particles of petrol, perfume or acetones are there on this surface of palm, they take the energy from the surrounding, and by taking energy from the surrounding they do the process of evaporation, and as soon as the process of evaporation start, the overall energy of the system decreases. That means temperature decreases, and when temperature decreases cooling effect start, और due to that cooling effect you feel that coolness on your palm। आपको आपके palm पे coolness feel होता है। ठीक है, गॉट इट टॉपिक? ये हमेशा याद रखना, जब भी इवेपोरेशन प्रोसेस होगा सराउंडिंग में कूलनेस आएगी ही। क्यों कूलनेस आती है? बिकॉज ड्यू टू इवेपोरेशन प्रोसेस the overall temperature of the system gets down, and when temperature gets down coolness increases। ठीक है, जब भी टेम्परेचर नीचे चला जाता है कूलनेस बढ़ जाती है। बिकॉज रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? क्यों रेफ्रिजरेटर में चीजें ठंडी होती है? बिकॉज वहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो जितना टेम्परेचर कम जाएगा सिस्टम का, कूलनेस उतनी बढ़ती जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, why are we able to sip hot tea on milk faster from a saucer rather than a cup? ठीक है, उसने कहा कि देखो आप रोज सुबह उठने के बाद टी लेते हो या दूध पीते हो, तो ऑब्वियसली आपको मम्मी कहाँ देती है? उसे कप सॉसर में देती है। तो देखो वहां दो चीजें, एक कप है और एक सॉसर है। ठीक है, तो अब कप और सॉसर को कंपेयर करें। सो कप का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, लेट्स ड्रॉ इट ऑन दी ब्लैक बोर्ड। ठीक है, यहां ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिस इज योर कप। ठीक है, दिस इज योर कप, वैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो कप का ये जो है कप का सरफेस एरिया है। ठीक है, अब हम सॉसर की बात करते हैं। ठीक है, ये सॉसर है, सॉसर। ठीक है, दिस इज कप एंड दिस इज सॉसर। ये उसका सरफेस एरिया है। ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट द सरफेस एरिया, अगर हम दोनों की सरफेस एरिया की बात करें
So surface area of cup is less than surface area of saucer. हम ऐसे लिख सकते हैं, if we talk the surface area, देखो कप का surface area इतना सही है, लेकिन सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। सो जब हम कंपेयर करें, व्हेन यू कंपेयर कप एंड सॉसर विद ईच अदर, यू कैन इजीली सी दैट द सरफेस एरिया ऑफ कप इज स्मॉलर देन सरफेस एरिया ऑफ सॉसर। सो हमने क्या पढ़ा था, इवेपोरेशन की जो फैक्टर्स थे उसमें हमने क्या पढ़ा था, हायर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेट हायर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यानी सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना बढ़ जाएगा। इसलिए जब हम चाय को या टी को कप में रखते हैं और फिर सॉसर में रखते हैं, तो कप में रखी हुई टी को ठंडा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जबकि सॉसर में रखी हुई टी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? बिकॉज सॉसर में रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है, और जितना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा उतना टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिससे कूलिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट सॉसर में रखा हुआ जो भी मिल्क या टी है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि कप में रखा हुआ इट टेक्स सम मोर टाइम टू गेट कूल डाउन। ओके, सो ये फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता था, सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, तो कूलिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा, सो कूलिंग इफेक्ट भी कम होगा। ओके, चलो नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, that what types of clothes should we wear पढ़ चुके हैं, that is cotton clothes. We should wear cotton clothes in summer because cotton clothes has a very good property of absorbing our sweat. As soon as they absorb our sweat, they expose our sweat to our atmosphere, which result in evaporation process, and due to evaporation process cooling is created, ठीक है, which means coolness is created in our clothes, and when we touch it we feel that coolness in our body, ठीक है, पता चल गया? Is it done? So that's all for this chapter. Today we have finished all the required topics, required question, in-text exercise, all the things related to this chapter. Okay, I hope you got the whatever I taught you got it very well. Okay, and as a homework what you have to do is, whatever the last exercise is given in this textbook, that is after the completion of the chapter on page number 12, whatever the exercise is given, you have to write that exercise in your notebook. Okay, means whatever the 4 textual exercise, in-text exercise we have done, let me remind you, okay, on page number 3, ठीक है, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ आपको। होमवर्क, ठीक है, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, okay, page number, that is page number 3, then page number 6, then page number 9, then page number 10, okay, then lastly textual exercise, and it's on page number 12, ठीक है। So as a homework, all this exercise homework, all this in-text exercise and textual exercise, you have to write in a full scale notebook, and you have to submit its PDF
फॉर्म यानी उसके पिक्स लेके पीडीएफ बना के आपको आपके जो क्लास टीचर्स है, सब्जेक्ट टीचर्स है, नॉट क्लास टीचर, द सब्जेक्ट टीचर्स ऑफ योर स्कूल, उन्हें ये होमवर्क सेंड कर देना है. ओके, you got what is your homework? We have finished the first chapter, matter in our surrounding. Now whatever the in-text exercise we have discussed in this lecture and whatever the textual exercise I have given to you as a homework, all those exercises you have to write in a notebook. You have to take pic of all those exercise homework and make its PDF form and send it to your subject teacher. Concerned subject teachers को ये सारे homework का PDF form भेजना है, ठीक है, within 1 or 2 days. Is it clear? Okay. I hope you got what I want to tell you. Okay, and you will do the homework and send to your subject teacher. Okay. Okay, bye. Take care.